students, welcome to the part 4 of our chapter number 2 of class 10th, that is acids, bases and salts. So we have covered up to now a lot of things in acids, bases and salts, and now further we are going to move to our topic, that is salts, right? But क्या क्या हम already पढ़ चुके हैं? Let's have a quick summary, ठीक है? देखो पार्ट 1 में हमने बहुत बेसिक से स्टार्ट किया था कि एसिड्स और बेसिस की अपने जूनियर क्लासेस में कौन सी डेफिनेशंस देख रखी हैं, है ना. फिर उसके बाद हमने सोचा लाइक जस्ट वी हैव थॉट अबाउट इट कि एसिडिक सॉल्यूशन है और बेसिक सॉल्यूशन है, तो उसका आइडेंटिफिकेशन कैसे हो सकता है, क्योंकि हमारे पास कोई पावर या फिर जादू तो है नहीं कि हम देखते ही बता दें कि अच्छा ये एसिडिक है ये बेसिक है. वी हैव टू डू समथिंग केमिकली. ओके, सो हमें आइडेंटिफिकेशन करना था, दैट्स वाई वी हैव लर्नड अबाउट इंडिकेटर्स ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, राइट. पार्ट 3 की बात करें अगर, तो पार्ट 2 में हमने देखा केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस. केमिकल प्रॉपर्टीज़ के साथ ही हमने क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस एंड एसिड्स भी देख लिया. कितने टाइप के एसिड्स एंड बेसिस होते हैं, जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, है ना, strong bases, weak base, by what is basicity, what is acidity in case of bases, basicity in case of acids, ठीक है. Then we have learned about what is pH scale, what is universal indicator, है ना, and how pH scale मतलब pH scale पे कौन सा solution कब acidic होगा और कब basic होगा, और जो भी वैल्यू आती है pH की उसका मतलब क्या है, मतलब इन द सेंस ऑफ H प्लस की कंसंट्रेशन या OH माइनस की कंसंट्रेशन, ठीक है. सो आई होप दैट वट एवर वी हैव लर्नड अप टू नाउ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग. नाउ like these things we have done already. Now our next topic would be salts. So acids and bases are totally completed. Next topic would be salts. Okay, so first of all I would like you, without looking at the screen, just try to ask yourself what is a salt and how it is formed, because I have already told you a lot of times कि salt क्या होता है, कौन से reaction से form होता है, and वो reaction और क्या क्या कौन कौन से type की reaction होती हैं, right? हाँ ठीक है, you are getting it right, that is neutralization reaction actually. So just wait. See, I told you what is neutralization reaction. So in neutralization reaction, an acid reacts with a base to form salt, of course, that is the main topic, water and heat. So because of heat that would always be an exothermic reaction, ठीक है. Now the thing is कि और कौन ये जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है वो और कौन कौन से टाइप की रिएक्शन होती है. सो वी कैन राइट न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है. these are the type of this reaction, types of this reaction. Neutralization reaction plus exothermic plus double displacement also. है ना, double displacement reaction, neutralization reaction and exothermic reaction, all three. So this you have to keep in mind, that's very important. These questions can come in your chapter number 1 also and chapter number 2 also. Fine. So now let's move towards salts, and you will see different types of salts in this topic, like washing soda, baking soda, plaster of Paris, bleaching powder, all these things, and we will learn what are the properties, what are the reactions of them, and we will do some questions in the end. Okay, so that will be the completion of our whole chapter, acids, bases and salts. Now let's move to the salts. Okay,
So salt is the product of neutralization reaction between an acid and a base. Let me show you the reactions. As you can see, this is a base, of course NaOH is a base, acid is HCl, obviously. When they are reacting together, they are forming NaCl, water, and definitely heat. They are not writing, even if no one is writing, you are supposed to understand that neutralization reaction कौन सी होती है, exothermic reaction होती है. Okay. So कैसे डबल डिस्प्लेसमेंट कैसे है ये, Na प्लस लिखा, OH माइनस लिखा, सो दिस इज NaOH, अब H प्लस लिखा और Cl माइनस लिखा, सो क्या है ये HCl है ना. इसको जब आयंस में ब्रेक, बस आयंस में ब्रेक कर दिया है एंड क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे तो मुझे NaCl मिल रहा है और HOH को क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो वाटर मिल रहा है. क्या ये बात सही है ना. तो देखो ये होती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. ना नेक्स्ट ये भी देख सकते हैं, अब ये बेस है, भले ही वीक बेस है, डजेंट मैटर, वीक बेस हो या स्ट्रॉन्ग बेस हो डजेंट मैटर, वीक एसिड हो या स्ट्रॉन्ग एसिड हो डजेंट मैटर, रिएक्शन होगी, न्यूट्रलाइजेशन होगा, सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा. सो NH4OH HCl, NH4Cl एंड वाटर, दिस इज सॉल्ट. ओके, सी कैसे, you should know the valencies of ions, that's why I am telling you how they are like the reactions are happening. You should always know the valencies, okay, it's very important, else you will not understand how the chemical reactions are happening. So NH4Cl, NH4 plus and Cl minus, NH4Cl and H plus and OH minus H2O, okay, that's good, that's good. Now let's move to the properties of salt. See, characteristics of salt, like if I am saying that one characteristic, it will be applicable to all the salts, okay, mostly, generally all the salts, fine. So characteristics of salt, the first one is most of the salts are crystalline solids, okay. अब crystalline solid, crystals पता होंगे, salt के crystals होते हैं, sugar के crystals होते हैं, देखा भी होगा, समझ में भी आता है कि मैम क्रिस्टल, अच्छा वो ट्रांसपेरेंट सा, ओपेक सा सब्सटेंस जो थोड़ा सा मतलब शाइनी भी होता है एंड इट लुक्स वेरी गुड, वो क्रिस्टल होता है. द क्रिस्टल नाम से लोग पीपल जस्ट गेट अमेज्ड, राइट. सो द थिंग इज कि देखो क्रिस्टलाइन सॉलिड, दो क्यों ऐसा क्रिस्टलाइन सॉलिड क्यों लिखा गया, बिकॉज एक और टाइप का सॉलिड होता है जो होता है एमॉर्फस सॉलिड. अब ये चीज़ें आपको कहाँ पढ़नी चाहिए थी चैप्टर नंबर 1 ऑफ क्लास 9th, दैट इज़ मैटर इन अवर सराउंडिंग्स में, जिसमें सॉलिड्स के बारे में जब तुम पढ़ते हो तो तुम्हें क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमॉर्फस सॉलिड के बारे में भी पढ़ना चाहिए. इफ़ यू हैवंट लर्नड, आई हैव मेड वीडियोज़ ऑन चैप्टर नंबर 1 ऑफ क्लास 9th ऑल्सो, you can go and revise anytime, fine. So you can revise what are crystalline solids and what are amorphous solids. Let me tell you just brief कि देखो crystalline solid होता क्या है. crystalline solid, अगर मान लो कि मेरा कोई solid है, ठीक है, मतलब suppose कोई solid है, अगर उसमें एक ही टाइप का अरेंजमेंट पूरे solid में फॉलो हो रहा है, if one type of arrangement is followed in the whole solid, then it will be crystalline solid. For example, if I am making this kind of arrangement, see, ठीक है. So अगर बाकी सारे मॉलिक्यूल्स इसी टाइप का अरेंजमेंट फॉलो करेंगे, देखो सारे मॉलिक्यूल्स इसी टाइप का अरेंजमेंट फॉलो कर रहे हैं, है ना, मतलब थोड़ा छोटा बड़ा बन गया, ट्राई टू अंडरस्टैंड, इट्स सेम ओनली, फाइन. सो एक टाइप का अरेंजमेंट पूरे सॉलिड में फाइंड आउट किया गया, लाइक फॉर्म किया गया, दैट्स व्हाई इट विल बी कॉल्ड एज अ क्रिस्टल. और जैसे आपको पता है कि NaCl इज अ क्रिस्टलाइन सॉलिड, उसका भी एक अरेंजमेंट होगा. फ्यूचर में इन योर क्लास 12th यू विल बी लर्निंग द अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन NaCl क्रिस्टल, ठीक है, पर अभी नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है. क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है यही समझ लो, दैट्स गुड.
नेक्स्ट इज सॉल्ट्स में बी ट्रांसपेरेंट और ओपेक. ओके, ट्रांसपेरेंट और ओपेक. सो मतलब ट्रांसपेरेंट मतलब एक चीज़ के आर पार अगर मैं देख सकती हूँ, जस्ट लाइक ग्लास, ट्रांसपेरेंट ग्लास. अगर इधर रख, मिरर नहीं, ग्लास, ठीक है. मिरर, अगर ग्लास को मैं ऐसे रख दूँ तो उधर कोई इंसान अगर जा रहा है तो आई कैन ईजिली सी, ठीक है. ओपेक का मतलब क्या, जो मैं ना देख सकूँ. जैसे मिरर, मिरर में मुझे अपनी शक्ल दिखेगी लेकिन जो उसके पीछे है वो नहीं दिखेगा, है ना. तो ठीक है, ट्रांसपेरेंट और ओपेक. नेक्स्ट इज मोस्ट ऑफ द सॉल्ट्स आर सॉल्युबल इन वाटर. अच्छा, मोस्ट ऑफ द सॉल्ट्स आर सॉल्युबल इन वाटर. दैट्स definitely true. Okay, because they will be formed by HCl and not HCl, any acid or any base. So acids and base are soluble in water. Why? Because they will be giving ions H plus and OH minus. That's why salts will also be soluble in water. ठीक है, सॉल्ट सोल्यूशन बनाते हैं. सॉल्ट सोल्यूशन ट्रू सोल्यूशन होता है. ट्रू सोल्यूशन मतलब solubility अच्छी है, high solubility. Okay, so that's why most of the salts are soluble. Solutions of the salts conduct electricity in their molten state also. So that's very interesting. जो salt के solutions होते हैं ना, solutions के लो या अगर melted salt है, it will be conducting electricity. Let me show you how. So this was, I told you about crystalline solid. Next is see, basically salt, any salt is always a strong electrolyte. सॉल्ट जो होते हैं वो हमेशा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं. अब इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या है, तो इलेक्ट्रोलाइट इज सी, it's an ionic compound. That breaks into ions when dissolved in water. है ना, that breaks into ion when dissolved in water. They are salt, strong electrolyte का मतलब जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे सॉल्ट के वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, ब्रेक डाउन हो जाएंगे आयंस में. डजेंट मैटर कि ये एक एसिडिक सॉल्ट है या बेसिक सॉल्ट है, कोई मतलब नहीं है इसका. अच्छा, एसिडिक सॉल्ट और बेसिक सॉल्ट गलती से बोल दिया. इट्स समथिंग कि यू माइट बी थिंकिंग मैम एसिडिक सॉल्ट क्या होता है, बेसिक सॉल्ट क्या होता है, आपने तो कहा था सॉल्ट न्यूट्रल होते हैं. तो आई एम सेइंग कि वी विल बी लर्निंग टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स इन जस्ट 1 minute. After the completion of the characteristics, we will be learning types of salts. There I will be telling you acidic salts and basic salts and neutral salts. ठीक है, तो परेशान मत हो. मेरा कहने का मतलब ये था कि डजेंट मैटर कि अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है या नहीं, बेस स्ट्रॉन्ग है या नहीं, वीक है, कुछ भी हो, सॉल्ट्स हमेशा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे. ठीक है, सो लेट मी शो यू. NaCl है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या है, NaCl है, तो अगर इसके 10 मॉलिक्यूल्स हैं इन वाटर, it will be giving Na plus and Cl minus 10 ions, 10 ions. So this is 100% dissociation. समझ रहे हो, 100% dissociation. Now I believe that salt is a strong electrolyte. ये समझ में आ रहा है इसका मतलब क्या है. तो अगर ये सारे सॉल्ट जो हैं वो वाटर में आयंस में ब्रेक हो जाएंगे तो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दे विल बी कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी कैन बी conducted by electricity can be conducted by these salt solutions. अब देखो कैसे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है. लेट मी शो यू, जस्ट वेट.
देखो मान लो कि हमारे पास एक बीकर है, इसमें कोई सॉल्यूशन भरा हुआ है ना। अगर मैं यहाँ पे 2 आयरन के नेल्स लगा दूँ, ये क्या है, आयरन नेल्स, क्योंकि मैंने बोला था कि इलेक्ट्रोड्स और अगर सर्किट का काम करना है तो हम लोग किसी भी मेटल का यूज़ कर सकते हैं। मेटल्स आर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। सो क्या है कि अगर मैं इसको बैटरी से जोड़ देती हूँ, सपोज दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, ठीक है, ये टर्मिनल्स हैं, तो क्या होगा, ये जो आयरन नेल्स हैं, ये वायर नहीं है, आयरन नेल्स है ना, ये तो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी करेंगी, लेकिन बल्ब कैसे जलेगा, मुझे बल्ब भी दिखाना है, लेट मी शो यू। यहाँ पे एक बल्ब लगा देते हैं, bulb will only glow if electrical circuit is completed, है ना। और इलेक्ट्रिकल सर्किट कब कंप्लीट होगा, जब ये आयरन नेल्स आपस में, इनके बीच में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही होगी। तो ये जो सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन हम 2 टाइप के ले सकते हैं। वी कैन टेक some solutions to conduct electricity between iron nails। कौन से वो सॉल्यूशंस हैं? फर्स्ट इज सॉल्ट सॉल्यूशन, मैंने बताया था ये आयन देते हैं। सेकेंड इज मोल्टन सॉल्ट। अब मोल्टन सॉल्ट का मतलब क्या, कि अगर हमारे पास सॉल्ट है, हमने उसको मेल्ट कर दिया, तब भी वो जो आयंस है वो Na+ लाइक NaCl है, मेल्ट कर दो, आयंस जो है वो फ्री होने लगेंगे, फ्री हो जाएंगे तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं, तो मोल्टन सॉल्ट भी हम ले सकते हैं। थर्ड हम क्या लिख सकते हैं, एनी एसिडिक सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि इट गिव्स H+ आयंस इन वाटर, ठीक है। फोर्थ इज बेसिक सॉल्यूशन। क्यों? OH- आयंस इन वाटर, समझ रहे हो, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट चीज एंड इजी चीज, इंपॉर्टेंट है और इजी भी है, परेशान होने वाली कोई बात ही नहीं है। ये 2 आयरन नेल्स थे, बल्ब लगा था, बैटरी लगा था, बैटरी लगी थी, इलेक्ट्रिसिटी बनेगी, आयरन नेल्स तक आएगी, लेकिन सर्किट तभी पूरा होगा जब हमारे सॉल्यूशन में या तो आयंस होंगे या तो कुछ, मतलब कोई भी आयंस तो प्रेजेंट होने चाहिए। तो सॉल्ट सॉल्यूशन तो आयंस देगा, हमने अभी देखा। मोल्टन सॉल्ट भी आयंस देगा, Na+ एंड Cl-। एसिडिक सॉल्यूशन और बेसिक सॉल्यूशन तो देता ही है, H+ एंड OH-, ठीक है। So that is it for conduction of electricity. Next property is the salt may be salty, sour, sweet, bitter and umami. Umami is savory, right? So it can be of any taste, right? But taste you can never say that what are acids, what are bases. You are not going to taste HCl, isn't it? You are not going to taste NaOH. It's highly corrosive, right? Next is neutral salts are odorless. If neutral salts are there, they will be odorless, no smell. NaCl that is present in your homes have no smell, okay. Salts can be colorless or colored. अब देखो कलरलेस भी हो सकते हैं, कलर्ड, जैसे ब्लैक सॉल्ट देखा है ना, पिंक सॉल्ट देखा है, वाइट सॉल्ट भी देखा है। तो वाइट तो कलरलेस हो गया ऑलमोस्ट, अब कलरलेस क्या, कलरलेस तो ट्रांसपेरेंट हो गया, लेकिन चलो वाइट मान सकते हैं, ठीक है। पिंक सॉल्ट हो गया, ब्लैक सॉल्ट हो गया, कलरलेस होते हैं,
sometimes it's because of impurities, plus sometimes because of its nature, because from which acids and bases it is made. ठीक है, सो सॉल्ट्स कौन से एसिड्स एंड कौन से बेसिस से बने हैं, इसके बेसिस पे हम कितने सॉल्ट्स को, लाइक हाउ कैन वी डिफ्रेंशिएट डिफरेंट सॉल्ट्स, अब हम वो पढ़ने वाले हैं, दैट इज टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स. ओके, एंड दोज आर न्यूट्रल सॉल्ट्स, एसिडिक सॉल्ट्स एंड बेसिक सॉल्ट्स. ओके, सो देखो न्यूट्रल सॉल्ट्स का मतलब तो समझ में आ रहा है कि अच्छा कोई ना एसिड है ना बेस है. एसिडिक सॉल्ट क्या हो गया, बेसिक सॉल्ट क्या हो गया. मैम सॉल्ट तो हमने सुना है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से होता है, तो अगर एसिडिक सॉल्ट बना और बेसिक सॉल्ट बना तो मतलब न्यूट्रलाइजेशन हो ही नहीं रही है. तो ऐसा नहीं है, देखो हो रही है न्यूट्रलाइजेशन, बट इट इज़ समथिंग कि पूरी तरह नहीं हो पा रही. कैसे, लेट मी टेल यू. देखो मान लो कि एक बीकर है ना, तुमने उसमें क्या किया, 10H+ आयंस लिए हैं. अब कुछ देर बाद तुम उसमें NaOH ऐड करोगे तो NaOH क्या देगा, OH- आयंस देगा. ठीक है, मान लो कि NaOH नहीं ऐड कर रहे हो तुम, NH4OH ऐड कर रहे हो, दैट इज अ वीक बेस. तो वो क्या करेगा, वो 6 मान लो 5OH- ही दे रहा है. ठीक है, अब 5H+ and 5OH- will do neutralization. एक बीकर में अगर तुमने H+ और OH- आयंस लिए हैं, 5H+ एंड 5OH-, तो वो तो न्यूट्रलाइजेशन कर लेंगे, लेकिन जो एक्स्ट्रा 5H+ बन रहे हैं, मतलब बच रहे हैं, क्योंकि देखो इसमें से तो सिर्फ 5 ही H+ ने न्यूट्रलाइजेशन किया ना, बाकी एक्स्ट्रा तो बच गया. तो जो एक्स्ट्रा बच रहा है, समझ रहे हो, वो क्या करेगा, जो सॉल्ट बना होगा उसको एसिडिक कर देगा. उस सॉल्यूशन में तो न्यूट्रलाइजेशन से सॉल्ट बना, बिकॉज ऑफ 5OH- 5H+ विल डू न्यूट्रलाइजेशन, सॉल्ट विल फॉर्म. पर जो एक्स्ट्रा H+ आयंस बच रहे हैं, वो pH को क्या करेंगे, गिरा देंगे, 7 से कम कर देंगे. ठीक है, सो दैट विल बी कॉल्ड एज एसिडिक सॉल्ट. फाइन, सो लेट्स सी व्हाट इज न्यूट्रल सॉल्ट. Salt produced because of reaction between a strong acid and strong bases are neutral in nature. ठीक है, they are neutral in nature. The pH value of such salt will be equal to 7. They will be neutral. Okay, so strong acid and strong base क्या करते हैं, equal amount में H+ and OH- देते हैं, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि दोनों ही लाइक इक्वली न्यूट्रलाइज कर लेंगे, कोई भी एक्स्ट्रा नहीं बचेगा. इस वजह से जो सॉल्ट बनेगा वो न्यूट्रल होगा, उसमें ना एक्स्ट्रा OH- होंगे ना एक्स्ट्रा H+ होंगे, डजेंट मैटर. सो रिएक्शन क्या है, देखो एग्जांपल्स क्या है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, पोटेशियम क्लोराइड. क्यों ऐसा, क्यों, लेट्स सी. अच्छा, फाइंड आउट कैसे करेंगे कि सॉल्ट जो बन रहा है वो एसिडिक है या बेसिक है या न्यूट्रल है, कैसे कर सकते हैं. देखो हमें पता है कि एसिड प्लस बेस तो क्या देता है, सॉल्ट एंड वाटर. जनरली इस रिएक्शन को रिवर्सिबल इतना इजी नहीं है, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, बहुत हीट निकल जाएगी. अगर रिवर्सिबल करना है तो क्या हमें बहुत ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी, समझ रहे हो. लेकिन हम पेपर पे इसको रिवर्सिबल कर सकते हैं, पेपर पे समझने के लिए हम रिवर्सिबल कर सकते हैं. तो हम क्या करेंगे कि हम रिएक्शन करने की कोशिश करेंगे फॉर फाइंडिंग द एसिड्स and bases by which salts are made है ना. For finding the acids and bases by which salts are made, we will reverse the reaction. ठीक है, हम क्या करेंगे, सॉल्ट को वाटर से रिएक्ट करेंगे, वैसे ही डबल डिस्प्लेसमेंट की तरह ट्राई करेंगे. देखो कैसे, मान लो कि मुझे दिया है
K2SO4 सॉल्ट, है ना। तो मैंने इसमें लिखना स्टार्ट किया K2SO4 प्लस वाटर, वाटर को मैं H2O ही लिखूंगी, सिंपल। अब देखो डबल डिस्प्लेसमेंट करते हैं, K प्लस SO4 2 माइनस, यहाँ पे H प्लस OH माइनस। चलो बना दो KOH, कौन सा बेस बना, KOH प्लस H2SO4, दिख रहा है कि ये भी स्ट्रॉन्ग बेस है और ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो जब स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट करके, एक्चुअली रिएक्शन कैसे हो रही होगी, ये रिवर्स वाली ट्रू होगी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। बट हमने फॉर टू जस्ट अंडरस्टैंड कौन से एसिड एंड बेस से सॉल्ट बना है, हमने क्या किया, ये उल्टी रिएक्शन करी। तो हमें पता चल गया K2SO4 किससे बना है, स्ट्रॉन्ग बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड से, मतलब इट्स अ न्यूट्रल सॉल्ट, ठीक है। तो हमें पता चल गया न्यूट्रल सॉल्ट। ठीक है, ऐसे और भी एसिड्स को देख सकते हैं जो कि एग्जांपल दिए हुए हैं, जैसे पोटेशियम क्लोराइड है। तो पोटेशियम क्लोराइड क्या होता है, KCl। हमने इसको वाटर के साथ, चलो रिएक्शन करके देखते हैं कौन सा एसिड और कौन सा बेस बन रहा है। ठीक है, देखो K प्लस Cl माइनस H प्लस OH माइनस, KOH प्लस HCl। KOH भी एक स्ट्रॉन्ग बेस है एंड HCl इज ऑल्सो अ स्ट्रॉन्ग बेस, so that's why it will be a neutral salt. नेक्स्ट बात करते हैं एसिडिक सॉल्ट की। तो एसिडिक सॉल्ट्स आर द सॉल्ट्स विच आर फॉर्म्ड आफ्टर द रिएक्शन बिटवीन अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अ वीक बेस। लाइक आई टोल्ड यू, वीक बेस क्या करेगा, कम OH माइनस देगा, स्ट्रॉन्ग एसिड ज़्यादा H प्लस देगा। जस्ट इस केस के हिसाब से बिल्कुल ये जैसे केस है, बिल्कुल ऐसा ही केस है। ठीक है, क्या करेगा बेसिकली, वो H प्लस आयन ज़्यादा देगा, मतलब एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ H प्लस आयन्स होगा। आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन ऑल्सो देयर विल बी सम H प्लस आयन्स दैट विल बी लेफ्ट। तो जो सॉल्ट बनेगा, सॉल्ट सोल्यूशन बनेगा, वो क्या होगा, एसिडिक सॉल्ट बनेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल NH4OH, ठीक है, इट्स अ वीक बेस। HCl, इट्स अ स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड। जब ये रिएक्ट कर रहे हैं तो क्या बना रहे हैं, NH4Cl and H2O। क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है तो डोमिनेट कर रहा है एसिडिक सॉल्ट। अगर तुम लोग नंबर ऑफ pH से जज नहीं भी कर पा रहे हो तो बस ऐसे जज कर लो कि जो स्ट्रॉन्ग है वो डोमिनेट करेगा और वही सॉल्ट फॉर्म होगा उसी नेचर का। तो हमें पता है कि स्ट्रॉन्ग है एसिड हियर, तो क्या फॉर्म होगा, एसिडिक सॉल्ट फॉर्म होगा, सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट है बेसिक सॉल्ट्स। देखो सॉल्ट्स, अब बेसिक सॉल्ट अगर है तो कौन सा, क्या स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, बेस, क्योंकि डोमिनेंस हमें बेस का चाहिए। तो सॉल्ट्स विच आर फॉर्म्ड आफ्टर द रिएक्शन बिटवीन अ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस आर कॉल्ड बेसिक सॉल्ट। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस इज नीडेड, लाइक फॉर एग्जाम्पल H2CO3 carbonic acid is a weak acid and sodium hydroxide is a strong base. समझ रहे हो, तो ये क्या देगा, सोडियम कार्बोनेट, एंड सोडियम कार्बोनेट क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस से बन रहा है, सो दैट विल बी अ बेसिक सॉल्ट। माइल्ड बेस रहेगा, बहुत हाई फाई नहीं रहेगा क्योंकि एक सॉल्ट है। तो अगर एसिडिक सॉल्ट है तो वो भी माइल्ड एसिडिक है, बेसिक सॉल्ट भी माइल्ड बेसिक है, एंड दैट विल बी वाटर। ठीक है, अब चलो कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। एक बार मैं कुछ क्वेश्चन बता देती हूँ। मान लो कि मैंने कहा कि अमोनियम सल्फेट या कार्बोनेट
नहीं सॉरी, अमोनियम फॉस्फेट, it is neutral or acidic or basic salt. कोई तुमसे पूछे कि न्यूट्रल है, एसिडिक है या बेसिक सॉल्ट है, तो सबसे पहले तुम्हारा आंसर होना चाहिए कि लेट मी राइट इट, लेट मी सी what are the valencies of ammonium and phosphate and let me write the formula first. ठीक है, चलो तो देखो अमोनियम NH4 प्लस, फॉस्फेट PO4, ठीक है, PO4 3 माइनस, वैलेंसीज पता है, फॉर्मूला बना लेते हैं अमोनियम फॉस्फेट का, NH4 प्लस PO4 3 माइनस, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ही फॉर्मूला बनता है ना, दिस इज अमोनियम फॉस्फेट। ठीक है, अब चलो देखते हैं ये बना कैसे है। तो ये जो अमोनियम फॉस्फेट है ये कौन से एसिड्स एंड कौन से सॉल्ट्स बेसिस से बना है, इसको पता करने के लिए हम रिएक्शन उल्टा कर देंगे। प्लस क्या, वाटर, अगेन डबल डिस्प्लेसमेंट करते हैं, NH4 प्लस PO4 3 माइनस, H प्लस OH माइनस। चलो जल्दी से बना लो, देखो NH4OH बन जाएगा एंड H, ये PO4 3 माइनस है, यहाँ H प्लस है तो H3PO4 and that is a strong acid. This is a weak base. And like you know very well कि जो strong होता है उसका dominance होता है, तो acid strong है, that's why strong acidic salt will form. ठीक है, so you can write it here. Acidic salt, fine, okay, done. Now it's done, neutral salts, acidic salts and basic salts. Cause of formation of acidic, basic and neutral salts, I have already told you. When a strong acid reacts with the base reacts with the weak base, the base is unable to fully neutralize the acid, due to this an acidic salt is formed. ठीक है, मतलब वीक बेस है तो OH माइनस आयंस की कंसनट्रेशन कम हो जाएगी, तो उतने ज़्यादा OH माइनस आयंस प्रोड्यूस नहीं होंगे, तो H प्लस को न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएंगे। When a strong base reacts with a weak acid, the acid is unable to fully neutralize the base. मतलब strong weak acid इतने H प्लस रिलीज ही नहीं करेंगे कि वो बेस को जाके न्यूट्रलाइज कर सके, इसलिए वो क्या बन जाएगा, बेसिक सॉल्ट, है ना। फिर when equally strong acid and a base react, दोनों इक्वल हैं तो दे फुल्ली न्यूट्रलाइज ईच अदर, therefore neutral salt will form. Okay, this I have already told you. Next, pH तो देख लेते हैं, देखो बहुत इजी है। ये जो NaCl है वो NaOH और HCl से बना है, तो ये न्यूट्रल है ना। स्ट्रॉन्ग और वीक से कोई अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से बनता है तो क्या बनेगा, एसिडिक सॉल्ट, एंड स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से बनता है तो वो बनेगा बेसिक सॉल्ट। ये सारे एग्जाम्पल्स हमने देख लिए, राइट। ये देखो ये क्या है, ये कंपाउंड क्या है, ध्यान रखना, एसिडिक एसिड। बाकी कंपाउंड तो यू विल रिमेंबर, बट ये मत भूलना, एसिडिक एसिड। एंड ये जो क्या बनता है देखो, सोडियम एसीटेट, it is a salt.
ठीक है, और कौन सा सॉल्ट? बेसिक सॉल्ट. फाइन, I hope you are able to understand. That is the completion of types of salts. Okay, types of salt is completed. Now we will be learning what are the different salts that will be in our syllabus. So different salts will be first common salt, then we will see caustic soda. Caustic soda is actually basic, but we will see because it's having a great applications. Okay. Then we will see a lot of salts like baking soda, washing soda, right, and we will see plaster of Paris, we will see bleaching powder. All these chemicals are very important in our daily life and industries also, and then we will do some questions. So now let's start with common salt that you considered as table salt that you use daily is NaCl, sodium chloride. Okay. So if someone will be asking you what is the formula of common salt, you will say NaCl. But I would like to tell you one thing कि पता है जो salt तुम लोग खाते हो, जो salt तुम लोग खाते हो, that is table salt. It's actually a mixture of three salts, NaCl, NaI and Ki. So it is actually iodized salt. तो देखो लिख के आता है ना वो टाटा सॉल्ट, आयोडाइज्ड सॉल्ट. ओके, सो दैट दिस इज द मीनिंग कि उसमें आयोडीन प्रेजेंट है. एक्चुअली आयोडीन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अवर बॉडी. मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, देखो हम कोई भी सॉल्ट पढ़ेंगे तो उसमें हमारे लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, उसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ एंड उसके यूजेस. ठीक है, इतना कवर कर लो, इट विल बी वेरी गुड फॉर यू. सो कॉमन सॉल्ट में मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में या एक तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो कि हम बहुत बार पढ़ चुके हैं. NaCl क्योंकि NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड से फॉर्म है, इसलिए ये एक न्यूट्रल सॉल्ट है. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. क्या है? एक न्यूट्रल सॉल्ट. ठीक है, और हम लोग NaCl कहाँ से यूज़ ले सकते हैं? फ्रॉम सी वाटर. इट इज़ ऑब्टेन बाय इवेपोरेशन ऑफ सी वाटर. तो देखो सी वाटर में भी हमारे कई सारे सॉल्ट्स प्रेजेंट हैं. समटाइम्स मिक्स सॉल्ट्स, रॉक सॉल्ट विल बी हैविंग अ लॉट ऑफ सॉल्ट्स विद डस्ट पार्टिकल्स ऑल्सो. सो इवेपोरेशन, अगर मान लो देखो सी वाटर से हम लोग वाटर कैसे कलेक्ट करते हैं. मान लो कि सी वाटर से हमने एक पाइपलाइन जोड़ी, राइट, एक यहाँ पे थोड़ा गड्ढा टाइप का बनाया, थोड़ा तालाब या लेक टाइप का थोड़ा सा बनाया, उसमें वाटर भरेगा. फाइन, आफ्टर सम टाइम या तो अगर इंडस्ट्रीज़ में हम कर रहे हैं तो टेम्परेचर बढ़ा के इवेपोरेशन कर दिया वाटर का और बच गया, जो बच गया वो सॉल्ट है. या तो क्या होगा, वो अपने आप ही इन समर्स वो जो पानी है वो अपने आप ही सूखता है, इवेपोरेशन होके वो इट विल बी गोइंग अप like obviously evaporation, it will be becoming water vapors, and जो बच गया in the end that is salt. So common salt वहाँ से भी derive कर सकते हो, लेकिन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से हम लोग इस कॉमन सॉल्ट को ऐसे derive कर सकते हैं. pH वैल्यू 7 है. क्यों? क्योंकि it's a न्यूट्रल सॉल्ट. अच्छा देखो ध्यान से, NaCl and H2O को क्या कहेंगे? सॉल्ट सोल्यूशन. प्लस और ब्राइन सॉल्यूशन. BRINE, ब्राइन सॉल्यूशन. NaCl प्लस H2O को, मतलब NaCl के सॉल्यूशन को हम ब्राइन सॉल्यूशन कहते हैं. Okay, this is like common salt is nothing much, right, it will be like edible and that's it. But common salt will be helpful in forming a great chemical that is caustic soda. Caustic soda is nothing but sodium hydroxide. देखो नाम बहुत ज़रूरी है याद रखना. अब caustic soda को कभी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिख के मत आ जाना. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? लाइम वाटर या स्लेक्ड लाइम, that is lime. Here
कॉस्टिक सोडा, सोडा जहाँ आ गया वहाँ पे क्या हो जाएगा, सोडा जहाँ हो गया वो सोडियम हो जाता है, ठीक है। लाइम जहाँ आ गया वो कैल्शियम होता है, समझ रहे हो। सो कॉस्टिक सोडा इज NaOH एंड NaOH को प्रिपेयर करने के लिए NaCl का बहुत बड़ा इट्स वेरी लाइक हैविंग अ ग्रेट रोल। क्यों NaOH इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि NaOH इज अ बेस, इट इज़ हेल्पफुल इन मेकिंग अ लॉट ऑफ केमिकल्स। अभी हम देखेंगे बहुत सारे केमिकल्स को बनाने में यूज़ होता है। तो देखो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन क्या है, क्लोरो एल्कली प्रोसेस, इसे क्लोर एल्कली प्रोसेस भी बोल सकते हो, क्लोर एल्कली प्रोसेस, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, NaCl का सोल्यूशन लेते हैं, दैट इज़ अ ब्राइन सोल्यूशन, ठीक। क्लोर एल्कली क्यों बोला, क्योंकि इसमें एक क्लोरीन बनता है, क्लोरीन गैस बनती है, अल्कली बनती है, NaOH इज अल्कली दैट इज डिजॉल्व्ड इन वाटर, NH2 गैस भी बनती है दैट इज ऑल्सो हेल्पफुल। तो मतलब हमें इस इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन सोल्यूशन से 3 कंपाउंड्स मिल रहे हैं, दैट विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट इज फ्रॉम सोडियम कार्बोनेट। तो देखो सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन अगर हम लाइम वाटर से करते हैं तो भी हमें NaOH मिल सकता है, यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट भी मिलेगा, दैट्स ओके। बट जनरली हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं ताकि हमें ज़्यादा अमाउंट में हमें NaOH भी मिले, हमें Cl2 भी मिले और H2 भी मिले, एंड Cl2 एंड H2 एक्चुअली आर गैसेस, ठीक है। तो यहाँ से NaOH का बनना और गैसेस का सेपरेट हो जाना काफ़ी ईजी हो जाता है। Cl2 एंड H2 तो गैस की तरह उड़ जाएंगी, लाइक वी विल बी कलेक्टिंग, डोंट वरी, बट NaOH जो है वो सॉल्यूशन में रह जाएगा। सो इट्स वेरी वेरी इजी, ओके। सोडियम हाइड्रोक्साइड, इट इज ऑब्टेन्ड बाय द इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, लाइक आई हैव टोल्ड यू, सोडियम क्लोराइड के इलेक्ट्रोलिसिस से NaOH, Cl2 एंड H2 बनते हैं। अब हमें ये देखना है कि कैसे बनते हैं, समझ रहे हो कैसे बनते हैं। देखो इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन, ठीक है। एक भी कर लो, यहाँ मैं क्या, यहाँ से इनलेट करूँगी, यहाँ पे आउटलेट होगा, यहाँ से मैं इनलेट करूँगी NaCl प्लस वाटर के सोल्यूशन को, दैट इज़ नथिंग बट ब्राइन सोल्यूशन। आउटलेट क्या होगा वो हम अभी देखेंगे, देखो ध्यान से। ठीक है, अब मैं 2 इलेक्ट्रोड्स का यूज़ करूँगी। देखो इलेक्ट्रोड्स में तुम लोग जनरली हम लोग कार्बन के इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं, कार्बन मतलब ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड यूज़ कर सकते हो, तो ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड यूज़ कर लो। इलेक्ट्रोलिसिस में तुम्हें पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोड्स क्या होती हैं। एंड ये जो नीचे है वो सॉल्यूशन होगा। इलेक्ट्रोड्स सॉल्यूशन में डूबी रहेंगी, ठीक है। देयर विल बी अ बैटरी, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस। तो जिस बैटरी जो रॉड बैटरी से कनेक्टेड है वो हो जाएगी प्लस, क्योंकि प्लस टर्मिनल से कनेक्टेड है, पॉजिटिव टर्मिनल से। जो रॉड नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है वो हो जाएगी नेगेटिव। अब तुम्हें ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोड का मतलब क्या होता है, तो लेट मी राइट इट हियर। इलेक्ट्रोड्स rods of metals or non-metals या carbon that are
helpful to complete circuit in electrolysis. दो तरीके की होती हैं, एनोड, कैथोड। जो भी नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ी होगी वो एनोड, जो नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ी होगी वो कैथोड। ठीक है। सो इसका मतलब ये है कि ये जो है वो कैथोड है और ये जो है वो एनोड है। फाइन। हमने सॉल्यूशन कौन सा इंटर किया है? NaCl का सॉल्यूशन। देखो ध्यान से, समझ रहे हो? अब देखो क्या होगा जब NaCl है ना, ये सॉल्यूशन है, चिंता मत करो। NaCl एंड वाटर दोनों प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली NaCl का सॉल्यूशन का मतलब क्या है? NaCl एंड वाटर दोनों। NaCl जो है वो बनाएगा Na प्लस एंड Cl माइनस, एंड वाटर जो बनाएगा वो क्या बनाएगा? H प्लस एंड OH माइनस। ठीक है, समझ रहे हो? अब देखो क्या है कि यहाँ पे दो पॉजिटिव आयंस है, दो नेगेटिव आयंस है। Cl माइनस एंड OH माइनस, एक सेकेंड, ये दोनों ही किसकी तरफ जाना पसंद करेंगे? एनोड की तरफ, है ना। देखो ध्यान से, Cl माइनस और OH माइनस दोनों माइनस है, नेगेटिव है, तो वो एनोड की तरफ जाना पसंद करेंगे। ठीक है। और Na प्लस एंड H प्लस वो कैथोड की तरफ जाना पसंद करेंगे। राइट। देखो ध्यान से, अलग कलर से दिखा रहे हैं। Cl minus and OH minus will want to go towards anode, but Cl माइनस, यहाँ पे देखो कुछ आयंस की कुछ स्पीड होती है, तो अभी ऐसे समझो कि आयंस जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी वो ज़्यादा जल्दी पहुँच के न्यूट्रलाइज हो जाएगा एनोड पे, क्योंकि एनोड पॉजिटिव है, Cl माइनस उसको अपना चार्ज दे देगा। बट Cl माइनस हैज़ ग्रेटर स्पीड। अभी ऐसे समझो तो क्या होगा? एनोड पे Cl माइनस, 2 Cl माइनस, सपोज करो Cl माइनस गए, मॉलिक्यूल आयंस गए, Cl2 के फॉर्म में इवॉल्व हो गए। तो हमें ये समझ आ रहा है कि एनोड पे जो गैस इवॉल्व होगी वो Cl2 होगी। अब आप सोच रहे होगे कि मैम हमें ये कैसे पता चला कि Cl माइनस ग्रेटर स्पीड का है? तो देखो ये एक चीज़ होती है जो कि आप हायर क्लास में पढ़ोगे। ठीक है, ये जनरली स्पीड की बात भी है, प्लस एक और चीज़ है जैसे दैट इज़ डिस्चार्ज्ड पोटेंशियल, लेकिन अभी नहीं, आगे फ्यूचर में। बाकी देखो Na प्लस एंड H प्लस wants to go to cathode, but H plus is faster, क्योंकि इस पर छोटा सा है, तुरंत जल्दी से चला जाता है। ठीक है, ये आयन की स्पीड पे भी डिपेंड करता है, प्लस डिस्चार्ज पोटेंशियल पे भी डिपेंड करता है। डिस्चार्ज पोटेंशियल के बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, फ्यूचर की क्लासेस में आएगा। अभी क्या समझना है स्पीड के हिसाब से। तो कैथोड पे क्या होगा? सपोज करो 2 H प्लस के आयंस पहुँचे, ये बन गए H2 और H2 गैस विल बी इवॉल्व्ड। और हमारी बीकर में क्या रह गया? अभी पूरी स्क्रीन भर चुकी है, सो आई एम नॉट लाइक राइटिंग एनीथिंग एल्स हियर, आई विल बी राइटिंग इन द नेक्स्ट पेज, यू कैन सी।
this is about electrodes, okay. So this is generally like extra information, and this is the whole experiment, okay. You can take a screenshot. Last में I just want to write one thing कि now at last ions that are left in solution are Na plus and OH minus. So ये combine करते हैं और NaOH बना लेते हैं, and that is caustic soda. So electrolysis of brine से हमें क्या क्या मिला? देखो NaOH प्लस Cl2 एनोड पे प्लस H2 कैथोड पे, ठीक है। ये देख लो एक बार, समझ आ रहा है? दैट्स ओके, डन, फाइन। So this was our electrolysis of brine solution. Now let's see properties of caustic soda. These are the properties of caustic soda actually. So it is a white crystalline solid, okay. यहाँ पे physical and chemical properties एक साथ दी हुई हैं, so that's why it is written as properties, not like not in a separated manner, together, combined. It is soluble in water, solubility, ठीक है। NaOH soluble in water होता है caustic soda, obviously तुम्हें पता है। Reaction with CO2, तो CO2 के साथ reaction करने पे NO2CO3 and H2O बनाता है, मतलब NaOH एक बेस है, CO2 एक एसिड है, जब रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है? Na2CO3 plus H2. So it is also a kind of preparation of Na2CO3, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड के साथ NaCl H2O and NH3 बनाता है, तो मतलब अगर फिर से NaCl बनाना है तुम्हें, तो NaOH के रिएक्शन कर दो अमोनियम क्लोराइड के साथ, तो ये बन जाएगा, देखो NaCl प्लस H2O प्लस NH3। अब ये जो NH3 गैस है ये अमोनिया गैस है, and it is helpful in solvase process also and some other processes also, ठीक है। like making fertilizers में भी अमोनिया गैस का यूज़ अमोनिया गैस यूज़ होती है। ये रिएक्शन ये है, ये रिएक्शन ये है। अगर AlCl3 के साथ रिएक्शन करें तो NaOH जो है वो इस टाइप के प्रोडक्ट्स देता है, काइंड ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, NaOH प्लस AlCl3 गिव AlOH3 प्लस NaCl, ठीक है। ओके, these are the reactions of caustic soda. What are the uses? So देखो हाइड्रोजन गैस uses of products after electrolysis of brine, जो ब्राइन सोल्यूशन हमने उसके प्रोडक्ट्स बनाए थे, जो कि ये प्रोडक्ट्स थे, देखो ये प्रोडक्ट्स, तो इनका यूजेस क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से यूज़ कर सकते हो। हाइड्रोजन गैस इज़ यूज एज फ्यूल, मार्गरीन मतलब बटरिश सब्सटेंस, ओके, मतलब थोड़ा अगर ऑयलिश सब्सटेंस कोई बनाना है तो उसमें यूज़ कर सकते हो। इन मेकिंग ऑफ अमोनिया फॉर फर्टिलाइज़र, तो देखो अमोनिया गैस फर्टिलाइज़र में यूज़ होती है, इसलिए मैंने कहा कि अमोनिया गैस का बनना काफ़ी अच्छा होता है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट। तो हाइड्रोजन गैस का अमोनिया बनाने में कैसे यूज़ हो सकता है, देखो अगर मैं N2 ले रही हूँ नाइट्रोजन गैस एंड आई एम रिएक्टिंग इट विथ 3H2 हाइड्रोजन गैस, सो इट विल बी फॉर्मिंग NH3 गैस, ठीक है।
and that is how ammonia will be formed. Fine. Next is chlorine gas is used in water treatment, manufacturing of PVC. PVC is polyvinyl chloride, जो कि यूज़ होता है ना पाइप्स में. It's a plastic only, it's a synthetic plastic actually and it's a polymer. So उसमें Cl2 का यूज़ होता है polyvinyl chloride बनाने में. Water treatment is used in water treatment मतलब जो water, जैसे हमारा water है उसको हमें disinfect करना है. Like we have to kill the bacteria and all the microorganisms in it. So we can use chlorine gas disinfectant के रूप में. Chlorofluorocarbon, okay, pesticides के रूप में यूज़ कर सकते हैं. It is also used in the manufacture of bleaching powder and hydrochloric acid. So hydrochloric acid तो तुमको पता होना चाहिए reaction H2 plus Cl2 gives HCl, है ना. अब bleaching powder में कैसे यूज़ होता है ये हम फ्यूचर में देख लेंगे. Sodium hydroxide is used for degreasing of metals. Degreasing, manufacturing of paper, soap, detergents, artificial fibers and bleach. Artificial fibers मतलब जैसे तुम पॉलीएस्टर, नाइलॉन, इन सब को बनाने के लिए भी NaOH का यूज़ हो सकता है. ब्लीचिंग पाउडर को ब्लीचिंग पाउडर के में भी NaOH का यूज़ कर सकते हो. सोडियम हाइड्रोक्साइड ब्लीचिंग पाउडर में कैसे यूज़ होता है, क्योंकि देखो ब्राइन सोल्यूशन है उससे ही हमें Cl2 मिल रहा है तो वहाँ पे यूज़ हो जाएगा. सोडियम हाइड्रोक्साइड इज़ यूज फॉर डीग्रीसिंग ऑफ मेटल्स. अब मान लो कि मेटल्स हैं, अब उसमें थोड़ा सा लाइक ऑयल लगने की वजह से लाइक दे हैव बिकम स्लिपरी स्मूथ, तो डीग्रीसिंग मतलब उसके ऑयल को हटाने के लिए NaOH का यूज़ कर सकते हैं. ठीक है. पेपर के मैन्युफैक्चर में, सोप के मैन्युफैक्चर में, क्योंकि मैंने बताया था कि सोप्स में एसिड बेसिस का यूज़ होता है. डिटर्जेंट के इन सब में NaOH इसका इलेक्ट्रोलिसिस जो NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसका यूज़ होता है. तो तुम्हें अब पता है कि हाइड्रोजन गैस का क्या यूज़ है, क्लोरीन गैस का क्या यूज़ है एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड का भी क्या यूज़ है. ठीक है. फाइन. सो कॉमन सॉल्ट एंड कॉस्टिक सोडा इज कंप्लीटेड. ओके. नाउ इन दिस क्लास we have seen a lot of things. We have started salts and we have seen types of salts. Then we have moved towards common salt, right? We have seen common salt is a neutral salt. Common salt के uses क्या हैं, क्या importance है. आगे बढ़े तो common salt से क्या chemical form हो सकता है, that is caustic soda. Caustic soda इतनी सारी चीज़ों में helpful है, इतनी सारी चीज़ों को form कर सकता है, so that's actually very helpful. आगे भी बहुत सारी चीज़ों को फॉर्म करेगा तो हम देखेंगे. ओके. सो इन द नेक्स्ट क्लास विल बी लर्निंग अबाउट वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पैरिस एंड विल बी डूइंग सम क्वेश्चंस एंड या वन मोर थिंग, ब्लीचिंग पाउडर ऑल्सो, एंड आवर टॉपिक विल बी, द चैप्टर विल बी completed. Fine. So I hope you are able to understand everything. Okay. Let's meet in the next class. If you have any problem you can write in the comment box. Thank you. Bye.